आई हैव माई रेज्यूमे राइट नाउ विद मी, जो थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है बट कभी का था, अभी मेरे को याद आ गया. सो लेट्स डू अ लाइव रेज्यूमे रिव्यू. यू आर अ प्रोडक्ट ओनर, so how's your day-to-day life at Amex? Is it worth it giving NIMSET, going for to pursue MCA and now working at American Express? Definitely, definitely. It is more than worth it, I would say. As a student, we don't know कि मेरा interest किसमें है. So how to find out my interest? कि whether I should go for development, whether I should go for data science and all. What are the top 2 jobs that comes to your mind right now? जो कि 5 से 10 साल तक तो चलने ही वाले हैं. I feel Gen AI is something that's going to run, that's going to have a long run in the industry. And second is obviously uh, ML engineering. So first of all, thank you so much, Didi, for coming to the podcast. And let's just start with your brief introduction to our audience. Sure. Thanks for having me, Adarsh. I'll give my brief introduction. So, I'm Shivangi Divedi, and currently I'm living in Gurgaon, working as a product owner with American Express. And I did my master's in computer applications from NIT Kurukshetra back in 2022. Originally, I'm based out of Lucknow, and I completed my graduation from Lucknow itself. So, that is a bit about me. Okay, okay, fair enough. Recently, book कोई publish किया आप बता रहे थे, and you are also interested in poetry. So let's start from there. Okay, sure. So I would like to definitely share that I recently published got my book published, which is a collection of 21 poetries dedicated to human emotions mainly. So as humans, we tend to experience a whole spectrum of emotions, say, right? We feel happy, we feel sad. And I'm a person who got into poetries during COVID. So that's how I started writing it. And I thought, why not give it a shot to get it published also? So that's how the story of the book goes. So simultaneously, I would recommend कि सबको ही अपना passion follow करते रहना चाहिए alongside what you do as a job, because this is also good, shapes your personality in a good way. So thanks for asking for it, and you should also get a copy for yourself. Yes, yes. So, I would like to ask कि उसका title क्या है? And how can I find? Okay. So the title is I Don't Feel Too Much, and the don't is crossed over there. So I feel too much. So that's how it goes. Is it available on Amazon? Yeah, yeah, it's available on Amazon. You can get it from there. By Shivangi Dwivedi. Right. Fair enough, fair enough. Okay, so आप पोइट्री लिख आपने अपने बुक, यू आर अ प्रोडक्ट ओनर एट अमेरिकन एक्सप्रेस एंड ऑल्सो यू आर वर्किंग विद एन एनजीओ. तो आप कौन से एनजीओ के साथ काम करते हो? डोंट यू थिंक कि बहुत सारा ही कुछ है एंड लाइक आप अमेरिकन एक्सप्रेस में काम, आपको ऐसा नहीं लगता कि टाइम कम पड़ रहा है या फिर ऐसा कुछ? I would say, see, आपको हर चीज़ साथ में नहीं करनी है. Like every day you don't have to dedicate time to each and everything. But I feel एक person की life में there should be different aspects. So these are the different aspects. Working with Amex is my profession. Working with the NGO is like something I would like to do, because I'll tell you about the NGOs in detail as well. Writing poetries is whenever I get some time. So I like to express my thoughts in words. So that's how it goes. But manage हो जाता है. If you are actually into some things, right? तो आप eventually time निकाल लेते हो उस चीज़ के लिए, and फिर 24 hours कम नहीं लगते हैं for things like this. And as you mentioned, working with the NGO, so NGO actually, my sister runs an NGO for children who are underprivileged. So she basically provides them with education, with food, with shelter and everything. So I merely like get to contribute a very little into her NGO, but yeah, that is something that actually brings happiness to you. So that's one part of it. And Amex is an organization. I am very lucky to be a part of such an organization who majorly focuses on work-life balance a lot. So काम तो रहता है, definitely रहता है, but you get time for yourself also. So manage it. ओके, जो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, लाइक सी आप अभी 4-5 साल से आप हो इधर इंडस्ट्री में. तो नाउ लुकिंग बैक, लाइक अगर पहले होते, जैसे सपोज आई एम अ फ्रेशर
So apart from apart from my job, I should prepare for my switching and all, or I should focus on my profession or the thing that I want to do. ओके सो गोइंग बैक इन टाइम 4 साल पहले बात करूँ, शिवांगी वाज़ नॉट इनटू मेनी अदर थिंग्स। आई वाज़ पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन माय प्रोफेशन एंड स्किल्स दैट टाइम बिकॉज़ जो अभी आपके पास टाइम है दैट वोंट रिटर्न, राइट? सो देयर इज़ 1 ईयर और 2 इयर्स ऑफ दैट बेस बिल्डिंग दैट यू कैन डू। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन हियर to kind of focus on your professionalism, to build your skills so that you can एक यू कैन बी रेडी, इंडस्ट्री रेडी, राइट? आप भी जान रहे होगे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल इंडस्ट्री में, किस तरीके की जॉब्स ओपन है एंड हाउ पीपल आर गेटिंग हायर्ड, राइट? तो उसके लिए कंटिन्यूअस स्किल एनहांस करना, कंटिन्यूअस टेक के साथ बने रहना कि क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग, वो ज़रूरी है। एंड आपके एज पर अगर मतलब अभी मैं सजेस्ट करूँ तो अभी अपार्ट फ्रॉम फॉलोइंग लाइक अदर हॉबीज आई वुड से, अभी यू शुड फोकस ऑन बिल्डिंग द बेस। एक बार बेस बन जाता है, इफ यू ऑलरेडी नो कि आप एक जगह पे इससे चीजें एनहांस करना थोड़ा इजी है। पेस एक बार इंडस्ट्री में आप चले गए, आपको 2 साल का देन वहां से यू कैन गेट अ पेस, आपको आइडिया हो जाता है कितना टाइम किस तरीके की स्किल को एनहांस करने में लगाना है। तब आप हॉबीज को भी इनकलकेट कर, डज नॉट मीन्स कि हॉबीज को बिल्कुल ही छोड़ दो एंड एक नॉटी बच्चे की तरह, नॉट लाइक दैट। But definitely, if you're serious enough, you'll definitely have to dedicate a extra amount to reach at some point. I was very much focused towards learning those things. Eventually, I was only the part of societies जो MCA रन करती थी। मैंने और किसी सोसाइटी में पार्ट नहीं लिया था। Yes, experts and there was one more, right? PG club. PG club. Yes. I was part of both, and also I was part of the शिक्षा। तो जैसा आपने बताया कि शिक्षा इज ऑल्सो समथिंग विच वर्क्स फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स। Yes, yes. वहाँ पे जाओ, पढ़ाओ, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करो, दैट इज अनदर लेवल हैप्पीनेस। Yes, yes, that सर it is. So I think you are a part of Shiksha, right? That's a very nice thing. Actually, at that time, I didn't felt कि मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ कि मैं वहाँ टाइम डेडिकेट कर पाऊंगी। Did not think that way. But Mexperts में I was the president of Mexperts मेरे साल के लिए। नो, yes, yes, I was not the president and all, but I were the core member of the next one। But that doesn't matter. You need to be a part of that because वो भी टाइम दोबारा नहीं आता. So you should enjoy. yes, yes, it gives you memories to like, जब मैं अब पास आउट हो चुका हूँ, तो ऐसे आता है कि 1 year ago, 2 year ago, तो when we look back at our memories कि जूनियर्स के साथ या फिर अपने सीनियर्स के साथ, तो सारा पूरा एक जर्नी दिखता है, that brings happiness। Definitely. ओके, सो आपने बोला कि टेक इवॉल्व हो रहा है, तो इफ आई आस्क यू व्हाट आर द टॉप 2 जॉब्स दैट कम्स टू योर माइंड राइट नाउ, जो कि 5 से 10 साल तक तो चलने ही वाले हैं और बहुत तगड़ा पैसा। As per my knowledge or as per the domain that I work in, I feel Gen AI is something that's going to run, that's going to have a long run in the industry. And second is obviously uh, ML engineering. So data scientist वाले जो roles हैं, ML engineers के जो roles हैं, that I feel is something जिसमें exploration अभी भी करा जा सकता है, provided Gen AI भी AI in itself is a thing that is evolving. I'm not saying that it's going to take over the jobs in the IT field, but इसके साथ ही there could be n number of possibilities that could be created. मतलब वो हमारे ऊपर है, हम ही ने टेक्नोलॉजी के साथ नई नई चीजें बनाई हैं, राइट? सो आई थिंक सो वो डोमेन अभी भी ऐसा है दैट हैज एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल हु आर क्रिएटिव and who can think beyond a certain horizon. So data scientists के roles, ML engineers के role with Gen AI, I think so it's a fail safe for next 10 years. But yeah, again, follow your passion. If you are interested in any other field like core development में भी अगर किसी का interest है, so those are also very high paying jobs and totally depends upon your skill set. If you are professional enough, if you are skilled enough, वो jobs भी काफ़ी अच्छी है। When I say core jobs, I mean operating systems या इन सब में like core language पे जिनका commands यस, यस, यस। उनके लिए। ओके, एज एन स्टूडेंट वी डोंट नो कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, सो हाउ टू फाइंड आउट माई इंटरेस्ट कि वेदर आई शुड गो फॉर डेवलपमेंट, वेदर आई शुड गो फॉर डेटा साइंस एंड ऑल। That's an interesting question I would say because मैं भी उसी stage पे थी। कहीं ना कहीं I was also even not able to understand because
इफ यू से एज अ स्टूडेंट आपको पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ता है, राइट? यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू सिलेक्ट योर सब्जेक्ट्स कि मुझे ये पढ़ना नहीं है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट देयर इज वन वे आई वुड सजेस्ट दैट एवरीबडी कैन काइंड ऑफ थिंक कि मुझे इस फील्ड में जाना है नहीं जाना है, इज द वे दैट अगर आप कोई चीज़ लेके बैठ रहे हो, राइट? इफ यू आर टेकिंग अ बुक्स, आपने कोडिंग के लिए जावा की, right? You are going through the codes, you are going through the like what do you say, the different ways you can write the code. अब मैं मुझे बहुत टाइम हो गया, so I cannot come with those words exactly. सपोज आपने कोई भी चैप्टर उठाया, उसको अगर पढ़ने के बाद 15 मिनट में नींद नहीं आ रही है ना, आधे घंटे में नींद नहीं आ रही है ना, तो आप उसे पढ़ रहे हो, तो उस एरिया में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, so you can explore सारे समझने में हाउ दिस थिंग इज फंक्शनिंग, हाउ दिस थिंग इज वर्किंग। एक्चुअली आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप 5 तरीके से, वन इज द ऑप्टिमाइज्ड वर्जन, n+1 की कॉम्प्लेक्सिटी, आपको अगर उस स्पेस में इंटरेस्ट, एंड यू इन दैट इज द वे टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट वेयर माय इंटरेस्ट लाइज। सो आई गिव माय एग्जांपल, जावा की अगर कोड की बुक खुलती थी, मुझे नींद आती थी 15 मिनट। So I was not a person who was into coding, not at all. Being a MCA student, I am saying this, that I was someone who was doing coding only for that bare minimum कि हाँ इतना आना चाहिए that I am able to sit for a job for that. I did study that, I did not completely give that, but my interest was in data. मुझे SQL अच्छा लगता था, आई लाइक डेटा बेसिस, बैक एंड क्वेरीज एंड ऑल, वो मुझे बिल्ड करना काफ़ी पसंद था, तो वो मैं लेके बैठी रहती थी। I used to work on those projects or something like that, and eventually I landed with a job that is currently allowing me to use that skill set only. So code नहीं करना पड़ा। But हाँ, मैं सबके लिए भी एग्जाम्पल यही दूंगी कि you don't know where you would go। ना आपको सारी ही कंपनीज आएंगी, बैठना आपको सबके लिए ही चाहिए। यू शुड स्टडी ईच एंड एवरीथिंग, चांस हर एक चीज़ को, बट हाँ इवेंचुअली अपने इंटरेस्ट पे काम करते रहो। आइडेंटिफाई करने का तो सबसे बड़ा यही तरीका है, यू नॉट गेटिंग बोर्ड आउट ऑफ इट, यू वांट टू एक्सप्लोर न्यू सॉल्यूशंस इनटू इट। आपका खुद से इंटरेस्ट आता है, खुद आप जानना चाहते हो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा, बट इवेंचुअली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, दे आर देयर फॉर अ रीज़न, दे आर देयर टू बिल्ड you as a professional as a whole to be ready for industry for any role. So as a fresher सब कुछ पढ़ो, हर चीज़ में अपना 100% दो, फॉलो करते रहो, सो दैट वंस यू रीच दैट एज, यू रीच दैट स्टेप, आप स्विच करना चाहो अपने रोल में अगर, तो इजीली कर सको। स्किल डेवलप होगा तो एनीबडी वुड टेक यू। फेयर इनफ। और व्हाट इफ आई एम अ बैक बेंचर और मैं जब कुछ भी उठाता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ, इस बार बैक बेंचर, यार बैक बेंचर्स का भी अपना अलग टैलेंट होता है। आई फील वो बुक उठा के तो उन्हें नींद आती है, बट उनका माइंड बहुत तेज चलता है। So they could possibly not even be in the need of that book, and उन्हें वो लेक्चर सुन के ही सारी चीजें समझ में आ जाए, जो फ्रंट बेंचर्स को बुक के साथ भी नहीं आए। So each and any, Really? like the message that I want to convey is that um, totally depends upon the person, right? कि आप कैसे चीजें परसीव करते हो, because be it a back bencher, be it a front bencher, you are there in a college, अब NIT कुरुक्षेत्र कोई पहुंचा है, if somebody has reached any reputed college, I cannot say that the person is not having any skill set, right? They have cracked the exam, they have reached there through their hard work, and they know that they have to kind of get themselves placed, एक अच्छा package है। So, in that way, I would suggest backbenchers and frontbenchers के बीच में हम इतना वो नहीं करते। थ्योरी तो सबके लिए ही सेम है, उनका इंटरेस्ट होगा, सो अगेन दे विल एक्सप्लोर थिंग्स देयर ओन वेज, एंड वेंचर्स का इंटरेस्ट होगा, दे विल एक्सप्लोर थिंग्स ऑन देयर वेज। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर व्यू पॉइंट ऑफ सीइंग द थिंग्स। फेयर इनफ। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर निमसेट जर्नी। कैसे आपने प्रिपेयर किया था, या फिर क्या कैसा रहा था? इन ब्रीफ एंड इन डिटेल, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर। Okay, now that I do not recall that much, it's been already been a long time since I Yeah, that's why I told brief. Yeah. So I'll tell you, I prepared for NIMSIT from INPS classes in Lucknow, from Nitin sir. And like, I still remember that NIMSIT includes maths questions from 11th and 12th. And then you have uh, logical reasoning, and you have quantitative, you have English, and you have computers, right? So the major area where INPS classes helped me was in clearing the mathematics objectives. Since 12th के बाद मैं सब भूल गई थी BCA में, I did not remember even a single thing, but
within that short span of time, I prepared for NIMSET for 8 to 9 months, I believe. Yeah. And during that duration only, because of the kind of material that you get with an INPS, right? And the number of hours you sit there, the way sir teaches you, my maths concept became clear, at least enough that I was able to qualify the NIMSET section of mathematics. Apart from that, computers तो आप regularly पढ़ रहे हो, prepare हो जाता है आपका, so that got prepared alongside. And apart from that, qualitative and quantitative also somewhere or the other gets covered within the maths only because solve भी कर रहे हो आप this. So that's how my NIMSET journey went. And I did prepare for NIMSET during my third year of BCA. So I had to handle studies also. Then I had to go to coaching and prepare for NIMSET also. So that era was very struggling, I would say, because I used to be out of my house for almost 12 hours. 8 in the morning I used to go and 8 in the night I used to come back. बहुत exhaustive होता था. But I think so it eventually paid out. Yeah. Yes, my next question was like, is it worth it giving NIMSET, going for to pursue MCA and now working at American Express? Definitely, definitely. It is more than worth it, I would say. Because लखनऊ में when I was doing BCA, I had thought कि मैं MCA तो किसी अच्छे कॉलेज से ही करूँगी. ये मेरा eventually thought था, but I did not know how to go there. मुझे नहीं पता था. Then from one of my friends, I got to know about NIMSET. कि there is this examination जिसमें you can opt for MCA from any reputed college like NITs, right? So I thought, let's try it. I gave my best. I prepared for like 8 months and then got the chance to be a part of NIT Kurukshetra. And then from NIT Kurukshetra also, the kind of culture you get to experience, right? And the best part, the kind of opportunities you get. Like हमारे batch में तो Amazon भी आई थी. Then SAP was also there. Like you get n number of opportunities. Both college provide कर रहा है. Now you are the one who has to kind of crack it, right? And that's how AMX happened. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा पहला साल था एनआईटी कुरुक्षेत्र में एट दैट टाइम कि जो उस टाइम मेरे सीनियर्स थे सुपर सीनियर्स उनकी प्लेसमेंट चल रही थी एंड उनके टाइम पे एमएक्स वाज द फर्स्ट कंपनी दैट केम एंड हैड द हाईएस्ट पैकेज उस समय आई जस्ट सेड लाइक दैट कि यार मुझे भी एमएक्स में जाना I feel that was a manifestation that I did at that time and eventually landed with Amex. And I'm very happy. And feel that NIMSET is a very good option for students who are pursuing BCA from anywhere and also for the ones who are pursuing BSc in computer science or per se, right? So they should definitely prepare for NIMSET. देना चाहिए. Not from NITs itself, but NITs के अलावा भी बहुत colleges हैं, which are very good colleges. And you can definitely land up with your dream jobs in your dream company. Yes, like there are HCU, Hyderabad Central University, BU are there, BU is there, BHU is there. BHU is there. Yes. Fair enough. आपने emphasize किया था नितिन सर के ऊपर. I was reading out that form. So, according to you, having a good mentor, how it changes your life? I think so. What I am today, somewhere or the other, उसमें नितिन सर का बहुत बड़ा हाथ है. Because जो उनके नोटेशंस होते थे, लाइक क्लास लेना एक चीज़ होती है, बट कुछ टीचर्स आपको लाइफ लेसन सिखाते. So Nitin sir is one of those personalities in my life who gave me a lot of life lessons, I would say. एक उनकी बात मुझे अभी भी याद आती है, जो आपने अभी मुझे बैक बेंचेस वाला उस पे फिट बैठती है, इज दैट कि करने वाला करने के बहाने ढूंढता है, ना करने वाला ना करने के बहाने ढूंढता Fair enough, है, राइट? fair enough. सो इफ यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग. मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता इफ यू आर डिटरमाइंड कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है. अपना 100% दो, बाकी रिजल्ट तो तुम्हारे हाथ में एनीवे नहीं, राइट? जिसको नहीं करना है वो 10 बहाने बना देगा कि यार मैं ये नहीं जा पाया, यहाँ नहीं आ पाया फॉर सो एंड सो रीज़न, तो वो कभी भी नहीं हो पाएगी. सो दैट्स हाउ थिंग्स प्ले. अगेन अब वन ऑफ द थिंग्स दैट ही यूज्ड टू से वाज़ कि लाइफ आसान हो जाती है 1 साल की मेहनत के बाद. अगर आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिल रही है के बाद हम एनआईटीज़ में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हैं और आगे का लाइफ तो हमको खुद ही पाथ कर शेप करना. बट एटलीस्ट अगर 1 साल तो मेहनत नहीं, तो इफ यू डू नॉट काइंड ऑफ एस्केप फ्रॉम दैट हार्ड वर्क, इट पेज ऑफ. नॉलेज कभी वेस्ट नहीं. तो या, so Nitin sir, if he's watching this, this is to him. Like he has really shaped a lot of lives, I would say. And people remember him.
for his Well, yeah. actually, I also reached out to IN-based classes when I was preparing for my NIMSET, but was not able to get into it because of some issues, financial issues probably. Then तभी मैंने डिसाइड कर लिया था लाइक इफ आई I'll prepare from self study and all, एंड अगर मेरा हो जाता है देन आई विल ट्राई टू पास इट ऑन टू दोज स्टूडेंट्स जो मेरी तरह है, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग मेंटोर्स लाइक यू, गाइड्स लाइक यू, जो बच्चों को, सो दैट इज द होल मोटिवेशन ऑफ दिस चैनल एज वेल. That's very nice that आपने self study से क्रैक करा because that is also that requires a lot of self discipline, I would say. Actually, and I was not at all the disciplined one. Doesn't seem like that if you cracked it. उस टाइम पे पता नहीं कैसे हो गया, बट हो गया. वो हो गया का क्या यू हैव डेफिनेटली प्रिपेयर्ड फॉर मतलब ठीक है एक मेंटोर होता है तो यू हैव कि ये करना है बट सेल्फ प्रिपेयर करा है सो यू नीड सेल्फ डिसिप्लिन. Congratulations to you, and that's a very good thing that you are doing for like students like you who want to pursue it and do not have a path as of now. Idea नहीं है that कहाँ से शुरू करना है. So that's a very nice thing that you are doing, contributing towards the society in your own way. थैंक यू, थैंक यू. ओके, आपने जो अपनी अमेरिकन एक्सप्रेस की जर्नी चालू की थी, यू स्टार्टेड विद एन इंटर्नशिप. आपके पास कुछ फुल टाइम एक्सप्लोर करने के बजाय आपने इंटर्नशिप को चूज़ किया एट अमेरिकन एक्सप्रेस. सो ओके, वी कैन से कि ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ दिस डिसीजन इज़ गुड, बट आप क्या रेकमेंड करोगे दूसरे बच्चों को कि आप भी ऐसा करो कि लाइक इन बिग टेक फर्म, इफ़ यू आर हैविंग एन इंटर्नशिप और इफ़ यू आर हैविंग अ फुल टाइम ऑफर फ्रॉम अदर टॉप टेक कंपनीज, सो आप मतलब क्या चूज़ करें, कैसे चूज़ करें? Yeah, so in that scenario, like suppose let's take one by one. केस वन लेते हैं जहाँ पे इफ़ यू हैव ऑलरेडी हैव अ गुड पैकेज के प्लेसमेंट ऑप्शंस फ्रॉम अदर हाई टेक फर्म्स है ना एंड ऑन द सेकंड हैंड यू हैव जो आपका फेवरेट फॉर्म है ना उसमें आपको इंटर्नशिप भी मिल रही है. पैकेज में अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रोफाइल आपके पसंद की है, राइट? दो मतलब देयर आर फैक्टर्स जिस पे डिपेंड करता है आपका डिसीजन. वन इज़ पैकेज, डेफिनिटली वो सब कोई देखता है. सेकंड इज़ योर प्रोफाइल, इफ दैट्स द डोमेन दैट यू वांट टू गो. अगर दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, दोनों एस्पेक्ट्स में, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर द जहाँ पे आपको फुल टाइम प्लेसमेंट मिल रही हो. डू नॉट गो फॉर इंटर्नशिप इन दोज़ केसेस. सेकंड, प्रोफाइल आपको दोनों इंस्टीट्यूशंस में एंड एक में आपकी पसंद की मिल रही है बट जिसमें यू आर गेटिंग द प्रोफाइल ऑफ योर ओन चॉइसेस इंटर्नशिप ऑप्शन एंड द अदर वन इज नॉट, बट पैकेज में ज़्यादा डिफरेंसेस. आई एम टॉकिंग ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल बेसिस. सो टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्फिडेंस. देन इफ यू थिंक कि आपके डोमेन में यू आर स्किल्ड एनफ एंड यू कैन मे बी कन्वर्ट दैट इंटर्नशिप ऑफर इनटू अ पीपीओ, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द इंटर्नशिप एंड नॉट फॉर द फुल टाइम ऑफर. एंड थर्डली, अगैन दोनों डोमेन्स वैसी आ जाती हैं विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल. ये पैरिटी अगेन अगर सेम है देन टोटली यू शुड गो फॉर द वन जहाँ पे आपको फुल टाइम ऑफर मिल, right? And in my scenario, what happened was that Amex only offered internship to MCA students, right? We did not got the even the option to kind of get the PPOs in the first place. So they mentioned कि वो 6 महीने का internship देंगे and then it's up to you whether you can get your PPO and converted or not. मेरे टाइम पे तो मैं got the internship, I saw कि इसमें तो सिलेक्शन हो गया है बट ये फुल टाइम पे नहीं. डेफिनेटली इट वाज अ रिस्की डिसीजन आई वुड से. उस टाइम पे आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट. बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा, बट मेरे लिए ऑप्शन नहीं था, मेरा सिलेक्शन हो चुका था. सो आई कुड नॉट हैव गिवन ऑन दैट. मैं चाहती थी एंड मैंने कहीं न कहीं आपको बोला ना फर्स्ट ईयर में भी आई मैनिफेस्टेड कि अगर एमएक्स मिलती है तो आई वाज़ वांट टू गो फॉर इट. तो आई थॉट मे बी बिकॉज़ डोमेन मेरे इंटरेस्ट का था. जो काम था वो सीक्वल पे. इट वाज़ मेजरली ऑन बिग हडूप, बिग क्वेरी पे, इन सब पे था. एंड माय इंटरव्यू मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें भी मेरा डिस्कशन काम को लेके द वन पर्सन देयर वाज दिस डायरेक्टर फ्रॉम एमिक्स हु टुक माय इंटरव्यू एंड आई हैड दिस वेरी गुड कन्वर्सेशन विद हिम. सो समवेयर और द अदर मुझे थोड़ा हंच था कि मे बी दिस इज माय फील्ड, माय डोमेन. आई डिड नॉट वांटेड टू गो फॉर कोडिंग एंड वो प्रोफाइल नहीं थी कोडिंग की.
तो एंड सरप्राइजिंगली द डिपार्टमेंट जिसके लिए हमारा इंटरव्यू हुआ था वाज क्रेडिट एंड फ्रॉड रिस्क, सो दैट इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स विद इन एमएक्स एंड रिस्क तो प्रोफाइल में ही था मेरा, so I took the risk and with what Just paid off. yeah I would be able to push that and yeah things have been smooth since then. Okay. You're a product owner. So how's your day-to-day life at Amex? Solution. Hmm. So I would say so I started my journey with Amex as a data analyst. And I got to be the part of one of the products that Amex maintains. And during that product life cycle, right, you have to kind of thoda thoda coding hota hai. You have to analyze the data and you have to share with your stakeholders and jo bhi concerned teams hoti hain, right? So that you have to do. I cannot go into details. Then apart, like after a journey of like 1.5 years or two, I got the chance, or I asked myself, I asked my leader that I want to explore so and so roles. Now it's enough. Like I'm done with the data analyst role. I do not want to do delivery anymore. So my leader kind of saw my interest. He saw the opportunity that whether I can contribute into a product owner role or not. And eventually I got this role in like some other team. And as a product owner, my day-to-day life deals with the major initiatives or major like the products that came into picture, like हमारे teams में जो भी आते हैं. There is a certain way the product has to be launched, right, within Amex. So उसकी journey को कैसे define करना है? If there is any caveat, if there is any conflict, उसे resolve करने के लिए solution prepare करना है. So that whole discussion to engage different teams to kind of get that initiative prepared, वो सारा काम आप एज अ पीओ आपको अपनी जर्नी के लिए करना पड़ता है. सो दैट्स हाउ माय डे टू डे लाइफ लुक्स. आई हैव टू गेट इनटू कपल ऑफ मीटिंग्स एंड देन हैव टू गेट एवरीबडी अलाइंड. सबके टाइमलाइंस मेंटेन करने पड़ते हैं एंड इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए उस प्रोडक्ट का जो आप हैंडल कर रहे हो. यू कैन नॉट लीव योर एजेस ओपन. So that's how you, and then of course वही आपका solution and you have to communicate with the leaders. You have to build the solution which is optimized. So in those ways you work as a product owner. After moving from tech to the management role, MBA required होता है या फिर आप बाद में या फिर परसू करना आपके प्लान्स है? Choice. हाँ, मतलब टोटली योर चॉइस आई वुड से. एमेक्स में मेरा कोई प्लान नहीं है अभी एमबीए का आई वुड से. बट या आई an organization like Amex, they see your potential. Doesn't matter if you have done an MBA or not. If they see that you are skilled enough for the management role, तो आपको मैनेजमेंट रोल दे देंगे. एंड डेटा एनालिस्ट का भी जो रोल है एमेक्स में, इट्स नॉट अ टेक रोल आई वुड से. इट्स अ प्रोडक्ट रोल. सो एमएक्स इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो मेरा स्टार्टिंग से रोल प्रोडक्ट बेस्ड ही है, टेक नहीं था कभी भी. सो प्रोडक्ट में ही स्टार्टिंग से रही है एंड दैट्स हाउ प्रोडक्ट ओनर हैपेंड. बट या व्हेन यू से कि इफ एनीबडी वांट्स टू मूव फ्रॉम टेक टू मैनेजमेंट टीम, देन ऑल्सो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा. कुछ कंपनीज में देयर कुड बी अ मैंडेट, राइट, दैट यू शुड बी एन एमबीए ग्रेजुएट फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट और सो, वो तभी आपको मैनेजमेंट का रोल प्रोवाइड करेंगे. कुछ कंपनीज कुड बी कि आपका प्रोफाइल देख के, आपका स्किल सेट देख के, इंटरेस्ट देख के ले लें. बट आई वुड से कि द लेटर पार्ट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. अगर आप उस कंपनी का पहले से पार्ट नहीं हो तो, राइट, अगर आप लिटरली स्विच कर रहे हो तो मुश्किल है. इंटरनली आप टेक से अगर प्रोडक्ट में स्विच कर रहे हो तो काफ़ी कंपनीज अलाउ कर देती हैं विदाउट एन एमबीए. एंड in times like these, you should definitely get in touch with the ones who did MBA and now looking for jobs also. I'm not saying that doing MBAs do not result in good jobs. They really land up into good packages, very good packages, I would say. But जैसा industry trend चल रहा है, I do not have any plans to go for MBA as such as of now. एंड जहाँ तक मैं देखता हूँ, MBA इज़ ऑल्सो अ ट्रेंड जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं. बट लाइक यस फेयर जो भी है, लेट्स लीव दैट. सो ओके, No, सो व्हाट इज़ द स्टार्टिंग? we can discuss on that, but दो चीजें हम डिस्कस कर सकते. तो द वन डन देयर ग्रेजुएशन, राइट, बीटेक में करा है या फिर ऐसा कुछ करा के बाद ही अगर एमबीए ट्राई करना, आई वुड से स्टिल अ गुड ऑप्शन. जा सकते हो आप बिकॉज आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ है.
फॉर द वंस आई वुड सजेस्ट कि आपने बीसीए के बाद ऑलरेडी एमसीए परस्यू कर लिया, थॉट दिया होगा राइट आपने बीसीए के बाद भी यू वांट टू गो फॉर अ मैनेजमेंट रोल डायरेक्टली, या फिर आपको टेक रोल ही चाहिए, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का रोल। अगर एमसीए कर लिया है, देन आप एक बार थॉट दो ने का। एमसीए के बाद एमबीए करना इज टोटली अ चॉइस, नॉट अ रिक्वायरमेंट है। सो ट्रेंड फॉलो करना वैसे हो गया। बट हाँ, ग्रेजुएशन से कोई पीजी करना चाहता है, बीटेक के बाद एमबीए इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप डेफिनिटली जा सकते हो। बीसीए के बाद भी एमबीए इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, डेडिकेट करके आप जा सकते हो। एंड कुछ लोग आई थिंक सो ऐसा भी है, मतलब एज़ यू आस्क्ड अबाउट ट्रेंड, कुछ लोग ये भी प्रेफ़र करते हैं कि अपने ग्रेजुएशन के बाद दे डू अ जॉब फॉर 2 और 3 इयर्स इन अ गुड कंपनी, बिकॉज़ वर्क एक्स भी बहुत मैटर करता है व्हेन यू वांट टू गो फॉर एमबीए फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईएम्स। सो वो वर्क एक्स को यूटिलाइज करने के भी लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम पहले जॉब कर लें, देन यू शुड गो फॉर एमबीए। सो टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर चॉइस। Fair enough. So, what is the starting position at Amex? Like, if I want to get into Amex, so what is the like starting position? Starting position there are like again depends upon the team that you are applying for correctly. So from a campus placement, the roles that Amex took from our batch was data analyst again. The entry level roles we have data analyst. Then it can go up to product owners, product managers, then managers, senior managers. You can be a director someday. So that's how things proceed in Amex. But yeah, as per my information, data analyst is the opening role for product side. On tech side, I again SD1, SD2 roles, just like you have in other tech firms, right? So वैसा रहता होगा। तो Amex freshers को hire करती है 0 to 1 year of experience off campus, I don't think so. only on campus. Yes. Like that's my information. Could be wrong, could be right. I won't comment on that. But as far as I've seen, campus placements are much on a higher scale, I would say, as compared to freshers hire करती है, definitely करती है, but with some amount of work ex, I would say 2 years minimum, maybe. Yeah, Okay, okay, fair enough. entry level role. Okay. तो आपने इंटरव्यू वगैरह लिए होंगे आई गेस? नॉट ना, ओके, नॉट एट ऑल। So in AMX, there are certain policies that it follows. So I did not got the chance to take interviews per se as of now, because tech. बट स्टिल यू नो कि कैसा रहता है इंटरव्यू प्रोसेस एमेक्स का? I have been a part of one of such interviews in Kurukshetra itself. So मैडम वो पता है मुझे, that I can share. ऑन कैंपस का ही बता दो आप। हाँ, तो ऑन कैंपस में आई थिंक सो मेरे टाइम पे देयर वर 3 राउंड्स दैट हैपेंड। One was a OT, online test that included 2 questions of coding, easy ones, not very DPP type of questions, very easy questions that you can solve. Then we had some MCQs that were there. So these were the 2 sections, MCQs and the 2 coding questions. And I think so time was somewhere around 1 hour or 45 minutes or so. 45 minutes से 1 घंटे के बीच का OT. So when OT got cleared, then we had 2 technical rounds we had. One technical round was totally based on your core knowledge, जो आपके subjects हैं MCA में, right? Operating system है, CPP है, जो भी आप लैंग्वेज में काम करते हो, उसके बेसिक्स, वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो आपको आने ही चाहिए, राइट? व्हेन यू रीड थ्रू द लाइंस इन द बुक्स, तब आपको पता चलती हैं वो चीज़ें, ऊपर ऊपर से नहीं आती। सो दोज कोर क्वेश्चंस दे आस्क्ड मी। वो 1 घंटे का सेशन था, उसमें दे स्ट्रिंग का मुझसे कोडिंग करवाई थी उन्होंने। सो वो करवाया था, एंड देन आफ्टर दैट वन 1 घंटे का राउंड गॉट ओवर। उसके बाद शाम को आई गॉट टू नो दैट हाँ, मैंने पहला राउंड क्वालीफाई कर लिया। एंड देन सेकंड राउंड में इंटरव्यू था मेरा, एंड उसमें द पर्सन ओनली आस्क्ड मी अबाउट द सीक्वल क्वेश्चंस। उन्होंने मुझे नेस्टेड क्वेरीज पूछा, और भी लाइक द मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो सीक्वल में, नॉट इजी वंस। उन्होंने वो सब मिक्स अप करके मुझसे पूछा था, तो आई वाज टुक माय टाइम, बट इवेंचुअली उनको सही लगा। एंड देन ही गेव मी पजल्स ऑन गीक फॉर गीक्स। यू हैव 30 to 35 पजल्स ना, वो आप मग अप कर सकते हो आराम से। हाँ, तो वो पजल्स थे डेफिनेटली। एंड देन देयर वाज अ गेस्टिमेट आल्सो। So guesstimate में some, I'll give you just an example of the type of question he asked me was कि suppose आपको एक प्रोडक्ट की शॉप खोलनी, करेक्ट, विद इन अ सिटी। सो आप ऐसे कौन से 5 लोकेशंस को प्रेफर करोगे
राइट? जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की सेल मैक्सिमम हो सके। And you have to give that answer in numbers. It was a very vague question, I would say. So the way I approached it was कि मैंने उनको ही questions पूछे. I asked him that प्रोडक्ट किस चीज़ का है? is this what you want? Is this what you want? What is this the fact that I'm considering it right or not? You have to be interactive enough. नहीं, आप खुद लिखने नहीं बैठ सकते वहाँ पे. It's an ongoing interview. It's an interaction. आप उनसे बात करो. Gain like try to gauge his interest. वो क्या पूछना चाह रहे हैं, उसी डोमेन में जा रहे हो आप, नहीं जा रहे हो. So that's how that interview also went for around 45 minutes to 1 hour. And after that, I thought नहीं होगा. To be very honest, when this is after guesstimate, because I was not sure on that, but I gave my best. But sure आप नहीं हो सकते हो किसी भी चीज़ के बाद. So मुझे लगा शायद नहीं हुआ. उस रिजल्ट्स नहीं आए थे उस टाइम तक. जब एचआर राउंड नहीं हुआ था. देयर वाज़न्ट एनी एचआर राउंड्स पर से. 2 टेक्निकल राउंड्स यानी कोटी के बाद इट वाज़ ओवर. द अदर डे वी गॉट टू नो कि यस, दैट्स व्हेन व्हेन. या, कांग्रेचुलेशंस। राइट. ओके। सो आपने एक फॉर्म में मेंशन किया था कि यू आर कंसर्न्ड अबाउट टुडेज़ करंट इंटरव्यू प्रोसेस। व्हाई इज़ इट सो एंड लाइक आप क्या मीन करते हो उससे? What I mean from the current interview process is that ki, the way things are going on, right? If I talk about an SD role as of now, people are very much focused towards ना कि DPP इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ट्री का ग्राफ का क्वेश्चन आता है और निकल जाएगा हाँ इंटरव्यू, राइट? तो बेसिकली लीड कोड लूप। हाँ, लीड कोड लूप हो गया. कोई भी आप एक साइट उठा लो. रहा आई एम करेंटली नॉट इनटू अभी ट्रेंडिंग में क्या चला है, डोंट नो. मेरे टाइम पे जीएफजी, लीड कोड और एक और बहुत फेमस था पोर्टल हुआ करता था. सो इट वाज देयर. कोड शेफ, कोड फोर्सेस। Coursera was there. So I'm not. These are very good portals. Very good portals. You get variety of questions जो आपको आने चाहिए, but आपको याद नहीं करने चाहिए. You should not mug it up. लोग क्या करते हैं, अभी जो मैंने तरीका देखा है, द वे पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, जो बताया भी जाता है, इसलिए कि ये क्वेश्चंस आते हैं, ये सेट के क्वेश्चंस हैं. आपने पैटर्न याद, आपको पैटर्न समझ में आ गया कि हाँ ऐसा कुछ आएगा तो मैं ऐसे रिलेट करके बना दूंगा. लोग सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, राइट? पीपल आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन्स टू थिंक कि हाँ ये कोड और भी तरीके से कर. एंड व्हिच आई मेंशन इन द बिगिनिंग आल्सो, आपके इंटरेस्ट पे आपको पसंद है आप एक्सप्लोर करोगे, बिकॉज हर स्टूडेंट ये काम नहीं कर रहा है. यू मस्ट बी सीइंग, आप ही के बैच में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, दे हैव वेरी लाइक क्रेजी इंटरेस्ट इन दिस कोडिंग थिंग, एंड वो ये लूप नहीं फॉलो करते कि मुझे हर क्वेश्चन लगाना है, हर पैटर्न को याद करना है. इस तरीके से नहीं होता, बिकॉज अल्टीमेटली क्या आपको डेवलपमेंट करना है जाके इंडस्ट्री में, राइट? एज एन एसडी आपको चीज़ें बनानी है, वहाँ ये पैटर्न नहीं काम आते हैं. आपका लीड कोड का, ट्री का, ग्राफ का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, इंटरव्यूज भी इस तरीके से होने चाहिए. एक्चुअली टेस्ट योर स्किल्स. आपको कोई भी प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है ना डीपीपी हो, वहाँ बैठ के डीपीपी, तो वहाँ तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस करना है, राइट? तो अगर आप माइंड एक ऐसे कोड पे चला लोगे जो अभी तक नहीं है, बट आप कुछ नया बिल्ड कर लो, ज़रूरी नहीं है. अगेन आई एम सेइंग, हर एक की अपनी जर्नी हो. You do not have to be extraordinary. You can be good and you can definitely contribute in your own ways. ठीक है, अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो. अलग टैलेंट है आपका, अलग स्किल सेट है, अलग एक जर्नी है जो आपको शेप करनी है. बट इंटरव्यूज प्रोसेस से व्हाट आई मेंट वाज दिस ओनली, दैट द वे पीपल आर काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर इट, वो अपने आप को स्किलफुल नहीं वो अपने आप को आई वुड से कि रट रहे हैं चीज़ें, याद कर रहे हैं पैटर्न्स को. कोडिंग वाज़ नेवर अबाउट लर्निंग, इज़ नेवर अबाउट. वाज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। यस. बट एज अ स्टूडेंट मैं क्या फील करता हूँ, जैसे अगर लाइक व्हेन आई वाज अ एमसीए स्टूडेंट, मैं लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह पढ़ रहा हूँ कि डू ओनली दीज 15 पैटर्न्स टू मास्टर डीएसए। सो वो एक शॉर्टकट दिख गया कि ओके खाली 15 पैटर्न मेरे से डीएसए हो गया, और अगर डीएसए हो गया तो आई कैन क्रैक एनी कंपनी। बेसिकली सा बेसिक सा थॉट। देन वी हैव 75 कोडिंग शीट्स, 150 क्वेश्चंस कर। तो जब ये सारे शॉर्टकट्स पता चल जाते हैं ना, तो फिर स्टूडेंट भी कहता है कि चलो ठीक है भाई, अगर ये कर लेते हैं तो वहाँ तो चली जाएंगे कंपनी में। बट नाउ दे डोंट नो हाउ टू सर्वाइव एट दैट कंपनी, एंड देन लेऑफ्स एंड ऑल हैव। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट? व्हेन आई मेंशन्ड, आई थिंक दैट्स माय कंसर्न. वही चीज़ है कि एवरीबॉडी इज़ लुकिंग फॉर अ ईज़ी वे आउट.
इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी, मेरे लिए भी कुछ आएगा तो डेफिनेटली मेरी नज़र तो जाएगी यार, कि अगर 50 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चंस में आई कैन कवर, डीएसए इज़ अ होल वर्ल्ड, डीएसए एंडलेस है, एंडलेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन पॉसिबल ही नहीं है कि आप सब चीज़ कवर कर पाओ। सो आपको क्या काम करना चाहिए, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करो, दैट सॉल्यूशन मैनेजमेंट माइंड, राइट? सॉल्यूशनिंग का माइंड डेवलप, वो चीज़ अगर आ गई एक बार, फिर कहीं से भी पूछ लेगा डीएसए में, आप अगर पूरा कोड नहीं, राइट? आप अप्रोच भी बत इफ द इंडस्ट्री व्हिच इज़ हायरिंग यू, इफ द कंपनी व्हिच इज़ कमिंग टू पिक यू अप, वो ये भी देखेंगे कि बंदा इज़ सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ही इज़ एबल टू गिव मी द अप्रोच, काम तो मैं इससे करवा लूँगा, एटलीस्ट इसे पता तो है प्रॉब्लम को एड्रेस के। सो दैट्स द क्रक्स ऑफ इट। अगर आपको वो पता है, देन एनी इंडस्ट्री, गुड इंडस्ट्री वुड बी वेरी लकी और वेरी हैप्पी टू हैव यू। लाइक कल मैं एक लेक्चर ले रहा था एमसीए स्टूडेंट्स का, अब तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो पढ़ा रहा हूँ भाई। ओह नाइस सर, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। सो मैं दिखा रहा था उनको, तो आई जस्ट ओपन द लीड कोड, तो इंटरफेस था वहाँ पे। सो वी हैव वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वी हैव फ्यू कंस्ट्रेंट्स, वी हैव द एक्सेप्टेंस रेट ऑफ द क्वेश्चन, एंड देन वी हैव द कोडिंग पार्ट ऑन द नेक्स्ट साइड। बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यही है कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड द कंस्ट्रेंट्स की क्या क्या है, मेरा डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, एंड देन कोड इट आउट। सो ये सब बता रहा था मैं। तो एक्चुअली दिस इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू मी। या यू आर एब्सोल्युटली राइट। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम आधा वहीं पे सॉल्व हो जाता है। रटना नहीं चाहिए, Exactly. याद नहीं रहना। Okay. According to you, what are the red flags that you see in particular in a typical resume? I would say it should not be very textual. Ins नहीं, पैराग्राफ्स नहीं, it should be in a bulleted format. Okay. जितनी जल्दी a person can go through your resume, right? It should be very easy to read through. अगर आप पैराग्राफ लिख, nobody has that much amount of time को वो एक एक लाइन पर। सो प्रोजेक्ट्स भी मेंशन कर, तो अपने प्रोजेक्ट्स के साथ टेक स्टैक को पॉइंटर्स में मेंशन कर दो, या एक लाइन में विदिन कॉमास मेंशन कर दो। ये मत लिखो दैट आई बिल्ड दिस यूजिंग दिस, देन आई बिल्ड दिस यूजिंग दिस, वो सब नहीं होना चाहिए। सो बहुत ज़्यादा टेक्सचुअल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आई वुड से कलरफुल नहीं होना चाहिए, राइट? सो नहीं बिल्ड करते हैं लोग, पीपल हैव दैट आइडिया कि टेम्पलेट मिल जाते हैं आजकल रिज्यूम के, बट हाँ कलरफुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट आर यूजिंग टू डिस्क्राइब योरसेल्फ, दैट मैटर्स अ लॉट, राइट? कि आप किस तरीके से अपने रिज्यूम में वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, बिकॉज दैट काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स आपका वो क्या कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट करता है, राइट? आप कितने अच्छे से अपने आप को बता सकते हो, एंड ऑल्सो हर एक डोमेन को इंक्लूड कर दो विद इन 1 पेज ऑफ रिज्यूम ओनली। रिज्यूम कभी भी 2-3 पेजेस का नहीं होना चाहिए, एक ही पेज का होना चाहिए। एंड ये जो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या अपने अचीवमेंट्स मेंशन करते हैं ना, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सेक्शन, शुड बी देयर एट द एंड, शुड बी देयर। एंड किसी भी एक सेक्शन में अनलेस एंड अनटिल इट्स लाइक समथिंग आपने प्रोजेक्ट मेंशन करे हैं, तो हमें जो बताया जाता था, व्हाट आई फील कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट्स आर इनफ, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई, इफ यू आर अ फ्रेशर आई वुड से, अगर किसी कंपनी में काम किया एंड यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ वर्क एक्स, डेफिनेटली मेंशन इट। बट इफ यू आर अ फ्रेशर, मिनिमम 2 मैक्स 3 प्रोजेक्ट्स काम कर जाते हैं। One is the major project, other two could be the minimum minor projects जिसमें आपने काम किया हो। And when I say projects, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है? समथिंग दैट रिलेट्स टू अ रियल लाइफ प्रॉब्लम वर्क्स आउट फॉर यू, ठीक है? So yeah, I think so potential red flags are these only. Okay. Like I have my resume right now with me, जो थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है बट कभी का था, अब मेरे को याद आ गया। सो लेट्स डू अ लाइव resume रिव्यू। You tell me what are the red flags. I haven't taken an interview yet, but yeah, definitely. It's okay, it's okay. According to you, just give your input. I'll share you on WhatsApp. Okay, I'll go through it. Just a second. I have two resume, one for SD, one for data analyst. But right now I have the SD one. So And I'll send you the SD. हाँ, I graduated this year only, 2025. oh, congratulations for that as well. अब तो कॉन्वोकेशन होगा।
अच्छा, अभी the convocation which happened, right? Nice. So I've just opened it. Okay. I see education. It's a good format, I would say, that they've taken up. It's not colorful one way, right? Details are pretty much explanatory and pointed. The technical skills that you mentioned are good. Client का space है, I would say. That's getting cluttered थोड़ा सा. And then projects again, it could be shortened within each project. The way you have mentioned it, it's very good. You have tried to cover each and everything जो आपने उस project में contribute करा, but हमें से थोड़ा सा और concise. I feel that way. Otherwise, आपने 3 ही mention करे, which is again a plus point. Looks good. Work experience, and yeah, it looks good. It's a good resume, I would say. It's a pretty good resume. थोड़ी सी modifications कर सकते हैं as per me, but otherwise, anybody would like to view it because it's a one-page resume. It is having only the required information, nothing over the top. So it's good. So if you have to rate it out of 10, Any okay, fair enough. 8 sounds good. Okay. चलिए let's talk about AI now. According to you, पहले तो ये बात करते हैं कि how you utilize AI in your day-to-day life and how we should use. I am not that of an AI person, I would say. मैं चैट जीपीटी वगैरह बहुत कम यूज करती हूँ. But sometimes I use them. Requirement day to day life में तो. But yeah, where I have to see some options, right? In my personal life, I would say. Professional life में नहीं होता है. But in my personal life, whenever I want to search for some support, like just take an example, मुझे कोई न्यूज़ सर्च करनी है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एआई से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, राइट? डिस्पाइट ऑफ गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी लिंक कि मैं वो एक कोलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालूं, मुझे कोलेटेड डेटा दिख जाता है वहाँ पे. सो दैट्स हाउ आई यूटिलाइज इट. देन मेरे पर्सनल जैसे आई रीड बुक्स अलॉट, सो उससे रिलेटेड मुझे कोई डेटा चाहिए तो वो मुझे मिल जाता है. बट चैट जीपीटी इज समथिंग दैट आई यूज अलॉट. एंड देन आई like within professional career, I would say I'm hearing a lot about Gen AI as of now. Going to be the new normal in the industry. But as of now, again, that is something in an exploratory phase. बहुत काम हो चुका है, but the industries who are currently shifting it to it, right? उनको भी अभी time लगेगा to completely go there. तो personal life में अगर yeah, that's a very limited space. What kind of books you read? Uh, I prefer reading books majorly which are not related to reality. I like fiction, like Harry Potter use. So I like reading fiction. Then I like reading books which are somewhere like recently the one which I read uh, was from Sadhguru. Sadhguru की भी कुछ books आती हैं. So you can go through them as well. The name of the book was Death. So उनके कुछ अपने principles हैं which he explains. So especially if you ask about books, I am a very avid reader of Ruskin Bond's books, a collection of short stories, I would say. Or my favorite work of his is A Room on the Roof, if you have heard of it. The story of a boy. Ruskin Bond is my favorite writer per se. Okay. So आप कुछ books अगर आपको recommend करना हो, that your top 5 books that you want to recommend everyone Top to. five. हाँ. Cool. So top five, I would suggest Room on the Roof. We can go. Then recently I read one of the books, which was a good one. Classic comparison between two lives, one in the past and one in future, was Snow Angel. I read that book. It is again a fiction book. And then I like Chetan Bhagat also, some of his works. Not many people like Chetan Bhagat, I would say. But I feel Chetan Bhagat as a writer is someone who writes in contemporary Indian English. People kind of relate to it.
समझ सकते हो उनका। सो 400 ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट्सएप लैंग्वेज, लाइक कैसे हम लोग व्हाट्सएप पे बात करते यस एंड इंग्लिश इज ऑल्सो देयर, इंग्लिश में आपको वर्ड्स दिख जाए। तो 400 डेज उनकी एक बुक है जो मुझे अभी रिसेंटली पढ़ी थी मैंने, मुझे अच्छी लगी। एंड देन आई वुड से आई एम वेरी मच इनटू हॉरर नॉवेल्स एज वेल। तो रस्किन बॉन्ड के कुछ शॉर्ट collections are again about the horror. The Whisper in the Dark is one, and then the Deoli Nights करके there is this one book. So these are the top 5 that you can go for. आप ये बोलोगे कि there are none of these books are inspirational. I say in the ones go हैं. do not believe in self-motivated books at all because that doesn't works for me. Yeah. फेयर इनफ. बट लाइक जब मैंने पढ़ना चालू किया था एंड स्टार्टेड इन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स इन कोविड, आफ्टर कोविड बेसिकली, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नेमसेट. So that time I had to prepare myself for something steep. When you prepare through self study, you have to be your own motivator. You have to be everything by yourself. Yes. So 10 to 15 pages per day, that helped me a lot. Which book? Any book. If you ask me the favorite one, I'll say The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma. Oh, that. Oh, nice, nice, nice. Yeah, yeah. I that is also an silent book because I am not that type of reader. There are few books that I've heard are very good. The Monk Who Owns a Private, The Monk Who Sold His Ferrari. Alchemist, And yes, Alchemist. yes, Alchemist also I've done. Paulo Coelho is the writer. Yeah, Kite Runner is also one that is getting. Kite Runner is also there. That is in my list. Actually, I have the hard copy, but abhi thoda time. नहीं कोई बात नहीं. So there are plenty of books. Rich Dad Poor. This is that Pure Dad by Robert T. Kiyosaki. ये सारे Theory of Money. मैं पढ़ चुका हूँ मैं. Think and Grow Rich was my first book. Think and Grow Rich was my first book. उसको मैंने 3-4 दिन में, and that's a good book actually. Yeah. फिर वहाँ पे जब आप 3-4 दिन में खत्म कर दो ना, तब पता चलता वाओ, लाइक ये सब मिस हो रहा था. Yeah, actually, there are a lot of things जो आपको बुक सिखाती हैं. एंड एज अ रीडर यू हैव टू बी वेरी पेशेंस भी आता है बुक रीड करने से. वो लास्ट में क्या है वो जानने के लिए यू हैव टू गो थ्रू पेजेस एंड इट्स नॉट अ सीरीज यू कैन स्किप लाइक 10 सेकेंड्स आगे बढ़ा दिया. कांट डू दैट. यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल. एंड वन प्लस पॉइंट आई थिंक वोकैब भी अच्छी होती है बुक पढ़ने से. Exactly. Like coming from the Hindi background, I was from Hindi background, so बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि भैया how to improve communication skills. So I say read books, watch podcast in English, watch the conversation कि कैसे वो conversation कर रहे हैं. English speaking is basically तुम्हें अपने ideas को बताना है, सामने वाले के साथ conversation करनी है. So yes, this is the question. How you will be like giving the guidance कि कैसे हमें अपनी communication skills improve करनी चाहिए and English speaking as well. सो इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे थे राइट, इट्स नॉट ओनली इम्पोर्टेंट टू मग अप द वोकैबुलरी कि हमने दिन में 50 वर्ड याद, इसका मतलब कि हमने ये समझ लिया. जब तक आप उसे अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में उन वर्ड्स को आप अप्लाई नहीं, सिमिलरली गोज टू दी कि आपने कंस्ट्रक्ट सीख लिया एक लैंग्वेज का, बट अगर उसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स या एक मतलब आपकी कोडिंग का कोई भी अगर क्वेश्चन एक वो पैटर्न सीखने का या उसकी वर्ड सीखने का, कीवर्ड सीखने का मतलब नहीं है. सेम गोज़ विद इंग्लिश. इंग्लिश में अगर आपने वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, जस्ट एज़ यू सजेस्टेड पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो. चलो मैं मान लेती हूँ 4-5 साल पहले नहीं होगा फ्री इंटरनेट, था तो सही बट सपोज़ नहीं था. आप इतना फ्रीक्वेंटली यूट्यूब वीडियोज़ नहीं. बुक्स तो मोस्टली सारी इंग्लिश में होती हैं, हमारी कॉन्टेक्स्ट की बुक्स भी ऐसी ही होती हैं. आप रीड करो, यू कीप रीडिंग इट अगेन एंड अगेन एंड टॉक टू योरसेल्फ. अगर किसी और से बात करने में कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, खुद से बात करो इंग्लिश में. कुछ नहीं, कोई नहीं, रूम में हो तो आप थिंकिंग. आई वुड से कि इंग्लिश बोलने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक इन इंग्लिश इन द फर्स्ट प्लेस. Exactly. हमें प्रॉब्लम कहाँ होती है जब हम हिंदी में सोचते हैं तो बोलते समय Try to translate. Yes, yes. मैप नहीं कर पाते क्यों. Like कोई हिंदी का word इंग्लिश में पता ही नहीं चलता कि क्या है उसका meaning. वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस लूज, क्योंकि अब लगता है कि आता नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट, आता सब कुछ है. बट स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, फ्लो अपने आप अच्छा बन जाएगा. एंड इंटरव्यू प्रोसेस के लिए भी व्हाट आई डिड, आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन इट हियर. इंटरव्यू के टाइम
आपको अगर पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों का, तो इट्स वेरी ईज़ी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। नहीं आता फ्लो बनाना। इंटरव्यू आपको ड्राइव करना चाहिए एज़ एन इंटरव्यूई, मतलब इंटरव्यूअर का तो काम है क्वेश्चंस, आपको आंसर कैसे करना है बनाना चाहिए ना, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी एंड गिव मॉक इंटरव्यूज़। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप मॉक इंटरव्यूज़ दे अपने सीनियर्स से उनके इंटरव्यूज़ का पूछ हाउ यू अप्रोच्ड इट, हाउ इट हैपेंड, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट जो बहुत हाई-टेक फर्म्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर पीपल जस्ट लाइक यू कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हो दैट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कैसे काम चल रहा है, या हाउ पीपल यू नो वर एबल टू रीच अ सर्टेन स्पेस, राइट? सिमिलरली ऐसे भी लोग हैं जो इंटरव्यूज़ के मॉक इंटरव्यूज़ बना के डालते हैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे। यू कैन गो एंड सर्च फॉर इट कि एसडी के रोल के लिए ये सैंपल इंटरव्यू है या ये मॉक इंटरव्यू है। आप देखो व्हाट सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशंस हैपन देयर, बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट टू प्रिपेयर फॉर माय फर्स्ट इंटरव्यू। मैं भी इक्वली नर्वस थी एट दैट स्टेज। आई आल्सो डिडन्ट न्यू कि क्या होगा, बट आई सॉ दैट सैंपल इंटरव्यू। आई मेड नोट्स ऑफ इट एट पॉइंट टू पॉइंट कि हाँ, ये सवाल पूछा है तो दिस इज़ द वे यू कैन गिव योर आंसर्स। आप किस तरीके से अपना जवाब फ्रेम कर सकते। एंड अगेन इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसे छोड़ना। इवन ड्यूरिंग कोडिंग कीप कम्युनिकेटिंग, बात करते रहो, उसे अनइंटरेस्टेड मत होने दो पूरी कॉन्वर्सेशन। सो दैट्स हाउ यू कैन गो थ्रू इट, एंड वो पूरा मॉक इंटरव्यू भी आपका इंग्लिश में ही हो। वहां से भी आपको वर्ड्स पिक कर को मिलेगा दैट हाउ आई कैन राइट दिस, एंड नेवर गो इनटू स्पेसेस ऑफ योर प्रोजेक्ट्स विच यू डू नॉट नो और विच यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ। इंटरव्यूअर ने तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं देखा तुम्हें पता है तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या है, सो यू आर द वन हु नीड्स टू एक्सप्लेन ओनली दोज स्पेसेस जिसमें यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, एंड अच्छे से। एंड एक बार आप ये सारी चीजें करना शुरू इंग्लिश में बात करोगे, इवन अपने दोस्तों से कुछ होते हैं मजाक उड़ाएंगे स्टार्टिंग में, बट ठीक है, एक बार प्लेसमेंट होगा तो ताली भी फेयर इनफ। या लाइक ये जो ओल्ड स्कूल मेथड है कि शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो जो भी बोलना है बोलो। जस्ट बी खुद से कैसी शर्म, दूसरों के सामने शर्म आती है इंग्लिश बोलने में, बट खुद से कैसी शर्म हो। सो एक्चुअली इट वर्क्स इफ यू ट्राई टू मिमिक समथिंग, कहते नहीं है फेक इट अंटिल यू मेक इट, सो दैट्स द थिंग। या वर्क सेट, मतलब अल्टीमेटली आपको तो खुद को इम्प्रूव करना है ना, तो डू एवरीथिंग दैट। Okay. So, what is your final piece of advice to the students preparing for NEMSET aspirants? वन फाइनल पीस ऑफ एडवाइस वुड बी like be honest to yourself. Do not just study for showing others कि हाँ मैं इनसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अपने आप से ऑनेस्ट रहो। तुम्हें पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे लैंड करते हो, बिकॉज ईच ऑफ अस वी नो हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। हमें हमसे बेटर कोई नहीं जानता, नॉट इवन आवर मेंटोर्स। मेंटोर्स आर देयर आपको बताने के लिए, गाइड करने के लिए, बट उनको फॉलो करना आपके ऊपर है। तो अगर कोई कुछ कह रहा है, इफ़ योर मेंटोर इज देयर, अगर आप खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। इफ यू आर डेडिकेटिंग दोज 2 hours in your books, so just do not like keep staring at the pages, solve it, like वो 2 घंटे जो आप दे रहे हो, 120 minutes, मेक यूज ऑफ इट। तभी ऑनेस्टी रहेगी, तो फाइनली जब रिजल्ट भी आएगा ना, तो यू वुड नो, आपको एक आइडिया हो जाता है कि आई विल बी एबल टू क्रैक इट और नॉट, अगर आप ऑनेस्ट हो अपनी चीज़ों के साथ। सो दैट्स द होल क्रक्स ऑफ इट। डू नॉट वेस्ट योर टाइम एज ऑफ नाउ। व्हेन आई से वेस्ट, साल अच्छे से मेहनत कर लो, द वंस हु आर प्रिपेयरिंग, हु आर अबाउट टू प्रिपेयर फॉर इट, like be honest and dedicate yourself towards it, because it is your journey, ultimately is going to benefit you only. आप अच्छी प्लेस पे होगे, एवरीबडी वुड बी प्राउड ऑफ यू। अभी अगर आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स आपको इतना कंटिन्यूसली हार्डवर्क करते हुए ये भी कह रहे हैं ना कि अभी रेस्ट कर लो, अभी बात नहीं करो, सो दे आर योर पेरेंट्स, दे केयर फॉर यू, दे डेफिनेटली गोइंग टू स्टॉप यू कि अभी रुक जाओ, थोड़े दिन आराम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। दे आर थिंकिंग गुड ओनली, ठीक है। एंड ऐसे भी होंगे कुछ, आई थिंक सो, पीपल आर देयर इन सोसाइटी वुड लाइक कि ये क्यों कर रहे हो, डू नॉट गो फॉर इट, यू आर नॉट श्योर ऑफ इट। सुनना नहीं, डू नॉट लिव मिलते हैं, मेरे को भी मिले थे। एग्जैक्टली यार, पूरी लाइफ में से गो फुल फ्लेजेड, हार्ड वर्क करो, ऑनेस्ट रहो, डिसिप्लिन रहो, डेडिकेटेड रहो। 1 साल बाद ना
कि आके आपको कांग्रेचुलेट भी करेंगे कि भाई यू आर दैट वन पर्सन इन देयर फैमिली हु मेड इट टू एनआईटी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वहीं से आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कि आप ही पेरेंट्स आपको प्राउड फील करेंगे, एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू टेल देयर रिलेटिव्स एंड देयर सोसाइटी कि भाई ये तो 12-12 घंटे, वो ये नहीं बताएंगे मैंने रोका था। He will- Then will become the role model. yes, you definitely, आप भी सुनते होगे ये चीज अपने रिलेटिव्स में दैट भैया को देखो, भैया इज डूइंग सो गुड, राइट, एंड देन भैया फील्स प्राउड। Fair enough. Yeah, kind of. And what is the final piece of advice for the MCA students preparing for placements or MCU graduates जो ऑफ कैंपस प्रिपेयर कर रहे हैं? ठीक है, पहले ऑफ कैंपस की बात कर लेते हैं। सो एमसीए ग्रेजुएट्स हु आर करंटली लाइक वांटिंग टू गेट एन अपॉर्चुनिटी और गेट इनटू अ फर्म फ्रॉम लाइक ऑफ कैंपस से, सो पोर्टल अगेन आई वुड से मैटर नहीं करता, naukri.com हो या linkedin.com हो, डजंट मैटर। वहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करती, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू गेट अ कॉल बैक ऑफ कैंपस में। दैट्स अ हार्श रियलिटी दैट वी ऑल नो एंड वी ऑल डील विथ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री। तो हम सबको ही पता है, हम सबको रीच आउट करते हैं रेफरल्स के लिए, इवन मुझे भी करते हैं लोग, आपको भी करते होंगे। सो इट्स लाइक द थिंग इज कि रेफरल तो हम प्रोवाइड कर देंगे, देयर इज नो बिग डील, रेफरल प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगेन ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब या मतलब देयर आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ रेफरल्स यू कैन गिव, राइट, एंड द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस दैट कम फॉर दैट वन जॉब। सो द रिक्वायरमेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कि आप डेली कम से कम 50 नहीं तो 100, जितना आपकी कैपेसिटी है आप आउट करो, बिकॉज एन नंबर ऑफ कंपनीज हैं, कभी खत्म नहीं होती। आप ट्राई करते रहो, रीच आउट करते रहो, जब तक आप ट्राई करते रहो इज अ पॉसिबिलिटी कि 50-150 को भेजोगे तो एटलीस्ट 2-3 रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट, एंड आई एम अगेन गोइंग ऑन अ वेरी मिनिमम नंबर एज ऑफ नाउ। यू शुड बी रियलिस्टिक अबाउट थिंग्स। अगर आपको 2-3 अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं एक दिन के हिसाब से, अगर 150 को रीच आउट करा तो यू हैव दैट ओपनिंग। मेजर ऑफ कैंपस में आपको स्किल सेट मतलब प्रैक्टिस करना नहीं होता, डीएस से आपने पढ़ लिया, आपके कोर अगर ठीक है, बेसिक्स ठीक है, तो आपको रोज बैठ के ट्री ग्राफ के एग्जांपल्स या क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं, आपको रोज बैठ के अप्लाई करना है। एटलीस्ट गेट योर सेल्फ अ कंपनी जो आपको इंटरव्यू कर सके, उसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। लगातार अप्लाई करो, पोर्टल मैटर नहीं करता अगेन, ठीक है। एंड द वंस जिनको ऑन कैंपस ऑलरेडी कंपनीज मिल, the college is so good that they are able to get you like those companies जिसमें आप बैठ सको, तो make full use of it, do not again cheat yourself। मॉक इंटरव्यूज की प्रिपरेशन बेसिक्स से नॉट ओनली मतलब अगेन कोडिंग रटने पे मत जाओ, ब्रेक इट इनटू टू, को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दो, डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली, एंड लाइक आई वुड से जस्टिफाई करना वो टाइम जो डिवाइड करो, बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड अगेन लास्ट आई वुड से कि कम्युनिकेशन पीस जो हमने अभी डिस्कस करा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जिनको बहुत नॉलेज होती है बट वो बता नहीं पाते कि हाँ, मुझे ये भी आता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपने आप को। सो यू शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर इन योर कम्युनिकेशंस। सो या दैट वुड बी इट, ज़्यादा हो गया। नहीं, that sums up everything. ओके, सो मेरी तरफ से तो यही सेट ऑफ क्वेश्चंस थे या फिर टॉपिक्स थे दैट आई वांटेड टू डिस्कस। एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड, एनीथिंग दैट आई मिस्ड? नो, आई थिंक सो प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग। सो हमने एमसीए की जर्नी के बारे, उससे पहले की जर्नी भी डिस्कस कर ली, हाउ टू गेट इनटू एमसीए, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। इट्स जस्ट दैट वंस यू एंटर इनटू इंडस्ट्री ना, एन्जॉय योरसेल्फ एज़ वेल। काम तो रहेगा ही, पूरी लाइफ चलेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। बट हाँ, बी ट्रू, एन्जॉय योरसेल्फ। अगर एक डोमेन से दूसरे डोमेन तो भी पढ़ते रहो, मतलब कंटिन्यूअस, डू नॉट स्टॉप लर्निंग। फिर वो चाहे आगे चल के अपनी हॉबीज को परस्यू करना हो या किसी और डोमेन को भी। So life goes on, and everything that comes your way teaches you something or the other. So that's it, I would like to say. And thanks a lot, Adarsh. Thanks for having me. It was a very good experience for me as well. It was a privilege to having you. Any feedback that you want to give me personally to improve our communication for further? कभी और किसी के साथ हो? I think so, आप बहुत अच्छा कर रहे हो. The kind of approach that you have
the kind of questions that you are having. I saw that form that you gave, right? So it was a good one. It kind of summarized each and everything. So keep doing the good work, I would say. Do not stop. Again, the same thing I would like to mention it to you also. And everywhere, like the things are good, it can be made better. तो अच्छा है एंड अकॉर्डिंगली एनहांस करता चला जाएगा जैसे आप ऐड करते जाओगे लोगों को। Time to time. या Good. Okay, Didi. Thank you so much for coming to the podcast and guiding our students. I hope हमारी जनता को तो मिला ही होगा. And I'll drop your LinkedIn ID. They can connect you from there. अगर कुछ कोई experienced person है and if they want to like ask for referrals and all, they can also do that. या Yes. थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई आल्सो गॉट टू लर्न कपल ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू एज वेल। सो इट वाज अ गुड With time to time. थैंक यू। बाय बाय।